Hello students, in today's lecture we will take on the next questions which were left from the first lecture, previous lecture, and this is question number 4, exercise 4.3. This exercise is based on the quadratic equations. Now, first of all you have to transform this statement into quadratic equation. After that you have to solve the quadratic equation. Now, first is the sum of the reciprocals of Riemann is, and sum of the reciprocal of Riemann is 3 years ago and 5 years from now. अब से 3 साल पहले जो एज थी उसका रेसिप्रोकल और अब से 5 साल बाद जो एज होगी उसका रेसिप्रोकल्स, इनका सम्स कितना है 1/3. तो आपको रेहमान्स की एज बतानी है. तो जो निकालना है आपको उसको सपोज कर देते हैं लेट रेहमान्स एज कितना है x years. 3 साल पहले कितनी थी रेहमान्स एज 3 years ago. 3 साल पहले कितनी थी भाई x minus 3 years, and after 5 years रेहमान्स एज 5 years या after 5 years. अब से 5 साल, अभी x है तो 5 साल के बाद कितनी होगी x plus 5. कितना होगा भाई x plus 5 years, x plus 5. तो इनके रेसिप्रोकल्स का सम कितना है 1/3. व्हाट इज गिवन? देयरफॉर 1 by x minus 3 by 1 by x plus 5. This is equal to 1/3. This is equal to 1/3. 3 साल पहले जो एज थी और 5 साल बाद जो एज होगी, इनके रेसिप्रोकल्स का सम कितना है 1/3. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे. एलसीएम कितना आ गया? x minus 3 into x plus में 5 इससे डिवाइड करेंगे क्या हो गया x plus 5 इससे डिवाइड करेंगे x minus 3 into 1 x minus 3 that is equal to 1/3. अब देखिए भाई x plus x 2x 5 minus 3 प्लस का 2 डिवाइड बाय दिस इनटू दिस x minus 3 into x plus 5 सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या होगा x square प्लस में a प्लस में b minus 3 plus 5 कितना हो गया 2 into x और प्लस में a into b minus 3 into 15 कितना minus 3 into 5 minus 15. this is equal to 1/3. now cross multiply, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 को कितना होगा ये 3 2 जा 6x plus 3 2 जा 6 और ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा x square plus में 2x minus 15. Is it clear? Take both these terms to the right hand side. तो 0 is equal to x square plus में 2x minus 15 और ये माइनस का 6x और ये माइनस का 6. तो 0 is equal to x square 2x minus 6x कितना हो गया minus 4x minus 15 और minus 6 कितना हो गया minus 15 और minus 6 कितना आ गया minus 21. 0 is equal to this one, therefore this is also equal to 0. Therefore x square minus 4x minus 21 is equal to 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे. उसी तरह से कौन सा मेथड यूज करें? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. वो ज्यादा इजी रहता है. मिडिल टर्म इज -4. मिडिल टर्म इज -4. a into c 1 into -21 कितना हो गया -21. now you need two numbers whose sum is -4 and product is -21. now you just make the pair. अब it is product is -21, it means one number is minus and one number is plus और उनका सम कितना है -4 है, it means greater number is minus. very good. -7 into 3 -7 plus का 3. ठीक है. -4x को क्या स्प्लिट करेंगे -7x plus 3x x square minus 7x plus का 3x minus 21. this is equal to 0. इसमें से कितना आ गया x कॉमन ले लिया तो कितना आ गया x minus 7 और प्लस में इसमें कितना कॉमन ले लिया 3 तो कितना आ गया x minus 21 में 3 कॉमन ले लिया तो 7. this is equal to 0. from these two terms take x minus 7 as common and you got x plus में 3. this is equal to 0. either this is 0 or this one is 0. x minus 7 is equal to 0 or
x plus 3 is equal to 0. Okay, now x is equal to 7 and x is equal to minus 3. Now what is this x? Rahman says, can anyone's a's be in negative? नहीं हो सकती. a's cannot be in, a's cannot be in negative. a's negative नहीं हो सकती. therefore x is equal to 7 और रहमान से एज कितनी होगी? रहमान एज कितना हो गया भाई? 7 years. रहमान से एज इज 7 years. Now in a class test the sum of Shefali's marks in maths and English is 30. Now Shefali's marks in math and English is 30. यानी कि मैथ और इंग्लिश में जो सम ऑफ मार्क्स है वो कितना है? 30. And had she got 2 marks more in math, 2 marks more in maths, and 3 marks less in English. और इंग्लिश में 3 marks कम होते हैं, तो then the product of their marks would have been 210. उस केस में अगर इंग्लिश मैथ्स में 2 marks ज्यादा कर दो और इंग्लिश में 3 marks कम कर दो, then their product will be 210. अब जैसे प्रोडक्ट की बात आ जाती है, वो क्वेश्चन बन जाता है ऑटोमेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, क्योंकि आपको स्टेटमेंट दे रखी है सम ऑफ मार्क्स इज 30. अब वरना सम ऑफ मार्क्स में वे आप ये मान सकते हैं दैट हर मार्क्स इन मैथ इज x एंड इन इंग्लिश y, तो x प्लस y कितना मानेंगे? 30. लेकिन आगे क्या है? आगे प्रोडक्ट आ रहा है. इट मींस तो इसमें आप 2 वेरिएबल में मत लीजिए, 1 वेरिएबल में रखेंगे. तो वे दोनों के मार्क्स का सम कितना है? 30. एक को मान लेते हैं x. लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथ इज x. लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स इज इक्वल टू x. और सम कितना था? 30. एक में x है तो दूसरे में कितने होंगे? 30 माइनस x. कितने होंगे? 30 माइनस x. देन शेफालीज मार्क्स इन इंग्लिश कितना होगा भाई? 30 माइनस x. ठीक है. आफ्टर दैट ये तो फर्स्ट हो गया कि दोनों का सम 30 का, एक में x है तो दूसरे में कितने हो गए? 30 माइनस x. इन नेक्स्ट स्टेटमेंट हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ, यानी कि मैथ में x प्लस 2 हो जाते एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इसमें से 3 कम हो जाते, तो इनका जो प्रोडक्ट होता वो कितना होता? 210. therefore what do you say? therefore मैथ फर्स्ट केस में क्या था? इफ 2 मार्क्स मोर इन मैथ, मैथ में x प्लस 2 और इंग्लिश में कितना? 3 लेस, तो इंग्लिश में ये थे इससे 3 का, तो कितना हो गया? x प्लस 2 और ये 30 माइनस 3 27 माइनस x, दिस इज इक्वल टू 210. अब देखिए भाई इसको मल्टीप्लाई करें x को, कितना? 27x और माइनस x स्क्वायर 2 से प्लस का 54 और माइनस का 2x ब्रिंग 210 माइनस 210, दिस इज इक्वल टू 0. कितना आ गया? माइनस x स्क्वायर 27x माइनस 2x, 27x माइनस 2x कितना हो गया भाई? प्लस का 25x और 54 और माइनस 210 साइन माइनस का 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 कितना है? 6 और कितना? 10 10 माइनस 5 और यहाँ पे 1 156, दिस इज इक्वल टू 0. माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसको प्लस करने के लिए, x स्क्वायर माइनस 25x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 156, 6 इज इक्वल टू 0. ठीक है भाई. अब इसको स्प्लिट कर लेंगे मिडिल टर्म से और इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में. इज इट क्लियर? The sixth question is the diagonal of a rectangular field is 60 more than the shortest side. Let this is a rectangular field and the diagonal is 60 more than the shortest side. Shortest side से 60 ज्यादा है. And if the longer side is 30 meter more than the shortest side. और जो longer side है वो shorter side से कितनी ज्यादा है? 30 मीटर. तो इसमें क्या assume करें? Let the shortest side is x meter. Shortest side x meter. तो diagonal कितना है? 60 more than the shortest side कितना हो गया? 60 प्लस में x मीटर.
and the longer side is 60 meter more than the shorter side. कितना? Sorry 30 meter, तो 30 plus में x, 30 plus x या x plus 30 लिख लो, x plus में 30 और इसको x plus में 60 meter, ठीक है? Now after that we have to find the sides. अब ये देखिए भाई, rectangle क्या होता है? Rectangle opposite sides are equal and all the angles are 90 degree each. तो ये क्या बन गया? Let this is A B C E. तो triangle ABC क्या है? Triangle ABC is a right angle triangle. तो we can apply Pythagoras theorem in it. Is it clear? After that we can solve. तो इसमें क्या मानेंगे? Solution क्या है? Let shorter side is equal to x meter. Shorter side क्या है? x meter. Diagonal कितना होगा? 60 more than the shorter side. Then diagonal कितना है? 60 more than x plus 60 meter. और longer side क्या है? 30 meter more than shorter side. longer side कितनी है? कितनी भाई? x plus में 30 meter. ठीक है? Now, अब ये देखिए, therefore you can say ABC is a now triangle ABC is a right angled triangle. ठीक है भाई? अब क्या लिखेंगे? applying Pythagoras theorem. ठीक है? Pythagoras theorem. Applying Pythagoras theorem क्या होगा भाई? क्या होगा? AB square plus BC square is equal to AC square. तो AB square x plus 30 का square plus x square that is equal to x plus में 60 का square. सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे बना लेंगे. x plus 30 का स्क्वायर कितना होगा? x square plus 2 into x into 30 कितना हो जाएगा? 60x plus 30 का स्क्वायर 900 प्लस में x square that is equal to x plus 60 का होल स्क्वायर. x square plus 2 into x into 60 कितना होगा? 120x plus 60 का स्क्वायर कितना होगा? 3600. ठीक है भाई? अब इनको एक x square से x square कट जाओ, इनको आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए. x square plus 60x plus में 900 और ये माइनस का 120x और माइनस का 3600. दिस इज इक्वल टू 0. नाउ सिंप्लीफाइड x स्क्वायर. अब ये 60x माइनस 120x कितना हो जाएगा? माइनस 60x. 900 माइनस 3600 कितना आ जाएगा? माइनस का कितना भाई? 3600 माइनस 900 कितना होगा? 2700. This is equal to 0. Now, by splitting the middle term, we can solve it. Splitting the middle term कितनी है भाई? माइनस 60x. तो हम कोफिशिएंट ले लेते हैं माइनस a into c minus 2700. We need two numbers whose product is this one and sum is minus 60. तो इसको फैक्टराइज कीजिए 2700 को, या आप जीरोस को छोड़ दीजिए. दो नंबर जिसका प्रोडक्ट 27 हो और जिनका प्रोडक्ट माइनस 27 हो और सम, तो कितना होता है? 9 and 3, 9 3 और 9 minus 3 कितना होता है? 6. तो इसको मान लीजिए आप 30 से डिवाइड करें, 30 से 90. अब प्रोडक्ट माइनस साइड में एक बड़ा नंबर, एक माइनस का और एक प्लस का, और ऐड करें तो माइनस का इंक्रीज बड़ा नंबर क्या होगा? माइनस का. तो 90 और 30 का डिफरेंस 60 होता है. तो ये माइनस का ले लेते हैं. कितना? x स्क्वायर माइनस 90x और प्लस का 30x माइनस 2700. दिस इज इक्वल टू 0. इज इट क्लियर? ठीक है भाई? ना अब इसमें इनमें क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन है. कितना हो गया? x माइनस 90. और इनमें क्या कॉमन है? प्लस का 30. कितना हो गया? x माइनस 90. दिस इज इक्वल टू 0. इसमें क्या कॉमन आ गया? x माइनस 90 कॉमन आ गया. x प्लस 30. दिस इज इक्वल टू 0. आइदर दिस इज 0 और दिस वन इज 0. x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 30 इज इक्वल टू 0. तो
x is equal to 90, x is equal to minus 30. And what is x? X is the shortest side. तो sides cannot be in negative. ठीक है? Sides cannot be negative. ठीक है? Therefore x कितना है? Shorter side. Therefore shorter side is equal to x is equal to 90 meter. Is it clear? ये 90 मीटर है तो हमें दोनों साइड निकालनी है ना. We have to find the sides. तो longer side भी find out करनी है. longer side कितनी होगी? Then longer side कितनी है भाई? longer side is x plus 30. x plus 30 that is equal to 90 plus में 30 is equal to 120 meter. Is it okay? No. Question number 7. The difference of squares of two number. The difference of squares of two number is 180. दो नंबर से मान लो एक है x एक है y. तो x मान लो बड़ा है तो x square minus y square. x square squares का डिफरेंस 180 है तो x square minus y square is equal to 180. और दूसरा क्या लिया? Square of the smaller number is 8 times the larger number. हमने larger को क्या माना था? x. larger को क्या माना था? x. तो क्या है? Square of the smaller number यानी कि y का square. y का square is equal to 8 times the larger number 8x. ठीक है? तो इससे फिर दोबारा फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी क्वाड्रेटिक. अभी हम इसको 2 वेरिएबल में लेना पड़ेगा. ठीक है? नाउ सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली क्वाड्रेटिक बन जाएगी, 1 वेरिएबल में आ जाएगी. नाउ लेट लार्जर नंबर इज इक्वल टू x, लेट स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू y. ठीक है भाई? पहला क्या है? इनके स्क्वायर का डिफरेंस 180 है. लार्जर x था तो क्या है? देयरफॉर x square minus y square is equal to 180. Let this is equation first. Smaller क्या है? y. Larger क्या है? x. Now square of the smaller means y square. This is equal to 8 times the larger number. Larger कितना है? x. तो y square is equal to 8x. इसको हम क्या मान रहे हैं? इक्वेशन सेकंड. ठीक है? अब इस y square की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. Is it clear? तो क्या करें? स्मॉलर नंबर का स्क्वायर लार्जर के 8 टाइम्स के इक्वल. ठीक है? ये सेकंड इक्वेशन. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. पुटिंग y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x इन इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है भाई? तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x. दिस इज इक्वल टू 180. ब्रिंग 180 टू दिस साइड. तो x स्क्वायर माइनस 8x और ये माइनस का 180. दिस इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. नाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक. चलो लेट्स सॉल्व इट बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. भूल ना जाए, प्रैक्टिस बनी रहे. ठीक है? तो इसमें a कितना है भाई? a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 8, c इज इक्वल टू माइनस 180. तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा? x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. ठीक है? यू हैव टू लर्न दिस फार्मूला. नाउ पुट द वैल्यूज. माइनस b, व्हाट इज b? माइनस 8 माइनस b is माइनस 8 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 into a. What is a? 1 and c is minus 180. 4 into 1 into minus 180 by 2a. 2 into 1. Is it clear? Now this is minus minus plus 8 plus minus 8 का स्क्वायर 64. अब minus 4 into 1 into minus 180 minus minus plus 4 into 1 4 4 into 180 0. कितना हो गया? 18 4 जा 72. कितना हो गया? 72. Is it clear? Now divide by 2.
दिस इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस, ऐड करो इनको, कितना होगा 784, 784, दिस इज बाय 2, 4, 784. व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 784? अब स्क्वायर रूट हमें चाहिए, वैसे तो आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट 30 तक आपको सभी का स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो एक बार देख लो 784 का स्क्वायर रूट। अब देखिए पेयर बनाएंगे राइट साइड से, ये पेयर बन गया एक, ये तो कितना 2 2 जा 4, कितना 384 लेंगे, 2 का डबल कितना होगा 4, यहाँ क्या रखेंगे 384 के आसपास, उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो कितना 8 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 32 प्लस 6 38। ठीक है भाई, कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 784 28, 8 प्लस माइनस 28 डिवाइड बाय 2, तो x इज इक्वल टू दिस वन, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, वी विल गेट टू वैल्यूज ऑफ x, तो x इज इक्वल टू 8 प्लस 28 बाय 2 and x is equal to 8 minus 28 by 2. 8 plus 28, what is it? 36 by 2, 2 से 18, तो x is equal to 18, x is equal to 18, और यहाँ पे 8 minus 28 minus 20 by 2, this is equal to minus 10, तो x is equal to minus 10, and what is x? The numbers, so numbers will not be taken in, you have to find the numbers, so numbers you will take not in नेगेटिव, ठीक है, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ नंबर्स, ठीक है, नंबर्स आमतौर पे जो नंबर्स बोलते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब ये x विल नॉट नेग्लेक्टिंग, क्या लिखें, नेग्लेक्टिंग माइनस 10, नेग्लेक्टिंग माइनस 10, तो x इज इक्वल टू 18, x 18 है, तो लार्जर नंबर 18 है, लार्जर नंबर 18 है x, तो दूसरा नंबर कितना होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 into 18, ठीक है, x इज इक्वल टू 18, तो y स्क्वायर कितना होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, 8 into 18, 8 into 18 कितना होगा, 8 8 जा 64, 8 बन जाए 8 and 6 14, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो y इज इक्वल टू 12, y स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो y इज इक्वल टू 12, इसमें नेगेटिव प्लस माइनस 12 होना है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 12, तो हम माइनस को नेगलेक्ट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू 12, तो लार्जर नंबर कितना आ गया, लार्जर नंबर इज इक्वल टू 18 एंड स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 12, दिस इज आवर, is it clear? The question number 8 is, the train travels 360 km at a uniform speed, distance is 360 km and uniform speed से उसने इस distance को cover किया है, ठीक है। After that, if the speed had been 5 km per hour, if the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less. अब देखिए, मान लो डिस्टेंस तो उतना ही है, अगर आप स्पीड बढ़ा दें तो कम टाइम में पहुंचेंगे, सिंपल सी बात है, और अगर स्पीड 5 km per hour बढ़ जाती है, then it would have been 1 hour less for the journey. You have to find the speed of the train. चलो इसको देखते हैं, डिस्टेंस कितना है भाई, डिस्टेंस इज 360 km एंड लेट यूनिफॉर्म स्पीड, जो फाइंड आउट करना है उसको हम अज्यूम कर देते हैं, लेट यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना होगा भाई, इस डिस्टेंस को इस स्पीड से, तो टाइम कितना होगा, टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है 360 बाय x, इतने आवर्स लगेंगे उसको, ठीक है, ये ओरिजिनल टाइम है। नाउ न्यू स्पीड कितनी है, x किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई स्पीड, देन द न्यू स्पीड इज इक्वल टू कितना, x प्लस 5
किलोमीटर पर आवर। तो न्यू टाइम कितना होगा भाई? न्यू टाइम डिस्टेंस तो उतना ही है 360 डिवाइड बाय न्यू स्पीड कितनी है? x प्लस 5 इतने आवर्स। ठीक है, और क्या है, अब स्पीड ज्यादा थी तो टाइम 1 घंटा कम लग गया, यानी कि जो ओरिजिनल टाइम था, ओरिजिनल टाइम ये था, न्यू टाइम ये है, तो ये ओरिजिनल टाइम से ये जो है 1 घंटा कम है, ये 1 घंटा कम है, तो क्या करें, ओरिजिनल टाइम में से इसको माइनस कर दो, 360 बाय x माइनस 360 बाय x प्लस 5। ओरिजिनल टाइम में से ये माइनस कर दिया तो ये किसके इक्वल हो गया? 1 आवर, क्योंकि ये 1 घंटा कम था। अब इसको सिंपलीफाई करो और इक्वेशन निकालो। एलसीएम कितना आ गया भाई? एलसीएम x इंटू x प्लस 5, x से डिवाइड करेंगे कितना? x प्लस 5, x प्लस 5 इंटू 360 इंटू x प्लस 5 माइनस में x प्लस 5 से डिवाइड करेंगे x इंटू 360 x, दिस इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करें, इसको कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 365 इंटू 360 इंटू x, 360x प्लस में 360 इंटू 5, 360 इंटू 5 कितना? 5 से 0, 5 6 are 30, 3 5 3 are 15 and 3 18। ठीक है भाई, कितना? 0 5 6 are 30, 3 5 3 are 15 and 3 18, माइनस में 360x डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई कीजिए x इंटू x प्लस 5, तो x स्क्वायर प्लस में 5x, दिस इज इक्वल टू 1। ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? 1800 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में 5x, ये उधर चला जाएगा, माइनस 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 18। इज इट क्लियर? देयरफॉर x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 1800, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व करो। मर्जी है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर दो या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करो या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a माइनस b कितना है? 5 माइनस 5 प्लस माइनस b स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 इंटू c कितना है? माइनस 1800 बाय 2 इंटू a कितना है? तो कितना आ गया? माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1 इंटू 18, तो कितना होगा? 0 0 18, कितना आ गया? 18 4 जा 72 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 2, दिस इज माइनस 5 प्लस माइनस 7 to 2 5 बाय, अब इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया? 25 का तो 5 हो गया, और ये किन दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है? 8 9 जा 8 और 9 में छोटा कौन सा है? 8, तो कितना आ गया? ये 85 का स्क्वायर रूट है, इसका है ये 80 माइनस 5 प्लस माइनस 85 बाय। ठीक है, तो x इज इक्वल, इसको भी हम देखेंगे कि कैसे आया ये। चलो इसको देखिए, मैंने क्या बोला? इसका स्क्वायर रूट, अब ये 25 का तो एक 5 हो गया, इसका 8 इंटू 9 का 8 ले लिया। चलो इसको देखते हुए, ये ट्रिक है। मान लो 65 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, जिसे लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 65 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर 25, 6 प्लस 1 7, 6 इंटू 7 42। ठीक है, 75 का स्क्वायर चाहिए, 75 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 7 इंटू 7 प्लस 1 8, 7 8 जा 56। फिर 85 का स्क्वायर रूट चाहिए, एक स्क्वायर चाहिए, 5 का स्क्वायर 25, 8 प्लस 1 9, 8 9 जा 72, यही था। ठीक है, इस तरह से होता है। अगर मान लो कोई ये नंबर देगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना है 25 लास्ट में, तो ये 25 और जो ये है, ये किन्हीं दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए। किनका? कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो उसमें से छोटे वाला नंबर ले लेंगे, 8 9 जा 72 था, ये तो 25 का 5,
8 9 जा 72 का छोटा नंबर क्या होगा 8, तो 85 आ गया। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, आप कर सकते हैं। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस, तो x इज इक्वल टू -5 प्लस में 85/2 और दूसरा x इज इक्वल टू -5 माइनस 85/2 कितना हो गया -90/2 कितना है -40। x इज इक्वल टू कितना 80/2 80/2 कितना आ गया 40। अब स्पीड क्या कभी नेगेटिव हो सकती है? स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। देयरफॉर x की वैल्यू क्या है? देयरफॉर क्या लिखेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। देयरफॉर यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी भाई? 40 किलोमीटर पर आवर। इज इट ओके? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। The previous question was question number 8 and we have gone to question number 10. 9th we will be doing after it. An express train takes 1 hour less than the passenger train. जो express train है, it takes 1 hour less than the passenger train to travel 132 kilometer between Mysore and Bangalore. ठीक है? The distance between Mysore and Bangalore is 132 kilometer, and to cover that distance एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन। जो एक्सप्रेस ट्रेन का जो टाइम है पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर लेस है। ठीक है ना? और इसमें विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द टाइम दैट दे स्टॉप एट द इंटरमीडिएट स्टेशन। इन बिटवीन में जो स्टेशन आते हैं तो वो कंसीडर नहीं किया गया। ठीक है, विदाउट टेकिंग। नाउ इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द express train is 11 km per hour more than that of the passenger train। जो एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो कितना है? 11 km per hour more than the passenger train speed। You have to find the speed of the two train। जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें क्या था? उसमें स्पीड बढ़ा दी थी और फिर 1 आवर लेस लगा था उससे जर्नी को कवर करने के लिए। यहाँ पे दो ट्रेन ही अलग दी थी, पैसेंजर ट्रेन एंड एक्सप्रेस ट्रेन। तो पैसेंजर ट्रेन की से एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या है? 11 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस है 132 किलोमीटर। यू हैव टू एंड एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस। तो दोनों ट्रेन की स्पीड बतानी है, तो हम जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड मान लेते हैं। ठीक है, लेट पैसेंजर ट्रेन एवरेज स्पीड कितना? x किलोमीटर पर आवर। देन एक्सप्रेस ट्रेन एवरेज स्पीड। एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या होगी भाई? एक्सप्रेस ट्रेन 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन की x है तो वो कितनी होगी? x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर? 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होगा। अब डिस्टेंस कितना कवर करना है? 132। डिस्टेंस इज इक्वल टू 132 किलोमीटर एंड एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन। तो हम पहले दोनों का टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम की जो फार्मूला होता है, टाइम क्या होता है भाई? distance by speed। now time taken by express या passenger train, time taken by passenger train का डिस्टेंस तो सभी का कितना है? 132। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर, तो 132 बाय x इतने आवर्स लगेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड। और टाइम टेकन बाय ये पैसेंजर ट्रेन भी लिख लो है इसमें एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन में कितना? एक्सप्रेस ट्रेन में डिस्टेंस तो उतना ही है 132 और स्पीड कितनी है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन? x प्लस 11 से डिवाइड कर दो
इतने आवर्स आ गए। अब नेक्स्ट जो मेन चीज है वो क्या है भाई, टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इज 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन से एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम 1 आवर लेस है। टाइम किसने ज्यादा लिया, पैसेंजर ट्रेन ने। कितना ज्यादा, 1 आवर। तो पैसेंजर ट्रेन के टाइम में से 132 बाय x में से ये ज्यादा है कितना, 1 आवर, किससे, एक्सप्रेस ट्रेन के टाइम से। तो माइनस 132 बाय x प्लस में 11 एंड दिस इज इक्वल टू जो पैसेंजर ट्रेन का जो टाइम है एक्सप्रेस ट्रेन से कितना ज्यादा है, तो पैसेंजर ट्रेन के टाइम में से एक्सप्रेस ट्रेन का जो टाइम है वो माइनस कर दिया, देन इक्वल 1। नाउ अब इसको सिंपलीफाई करेंगे उसको बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। एलसीएम इज x into x plus 11, you divided by x, you will get x plus 11 into 132। कितना होगा, 132 into x plus 11 माइनस में x plus 11 से डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, x into 132 132x that is equal to। अब इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 132x प्लस में 132 into 11 11 2 जा 22 11 3 जा 33 33 plus 2 35 3 11 जा 11 11 3 14 माइनस में 132x डिवाइड बाय x into x x square plus x into 11 11x and this is equal to 1 32x minus 132x कर दिया। now you take it to other side, तो कितना हो गया, 1452 is equal to x square plus में 11x 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया। अब क्या करें, bring these to left hand side, तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11x और प्लस का 1452 दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको प्लस करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर प्लस में 11x और ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, ये प्लस और ये माइनस 1452 दिस इज इक्वल टू g। इज इट क्लियर? यू कैन सोल्व इट बाय quadratic formula or by splitting the middle term। is it clear? अब इसको देखिए, आगे प्रीवियस क्वेश्चंस हम इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व कर चुके हैं। यू कैन सॉल्व इट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑन योर ओन, तो बाय सॉल्विंग इट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। माइनस वगैरह आ जाती है तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो यू विल नेग्लेक्ट द माइनस वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी, x इज द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, देन यू कैन फाइंड द speed of the express train is x plus 11। is it clear? Let's proceed to the 9th question। see the 9th question and this is one of the important question of this chapter और board point of view से तो बहुत ज़्यादा important है। और अगर टफनेस लेवल की बात करें, जो हमने बाकी क्वेश्चन किए उनसे थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा है। 2 water taps together can fill the tank in 9 and 3 by 8 hours। If 2 water taps, we own 2 water taps, they can both take this much time, 9 and 3 by 8 hours to fill the water tank। Then the tap of the larger diameter takes 10 hours less than the smaller tap to fill the tank। जो लार्जर डायमीटर का है तो ज्यादा पानी आएगा, तो इट विल टेक लेस टाइम टू फिल द टैंक। अगर उनको अलग अलग से चलाते हैं तो जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है दैट विल टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक सेपरेटली। अलग अलग से उनको करते हैं तो जो लार्जर डायमीटर वाला है उसमें ज्यादा पानी आता है एंड दैट टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर टैप टू fill the tank separately। you have to find the time in which each tap separately can fill the, दोनों अलग अलग से कितने टाइम में अगर अलग अलग से चलाते हैं तो in how much time separately can they fill the tank। is it clear? अब उनमें दोनों का टाइम मान लेते हैं भाई, एक कितना टाइम लेता है, क्या इसमें जो लार्जर वाला है it takes 10 hour less than that smaller tap। तो हम इसमें ये मान लेते हैं let
let time taken by smaller tap to fill tank, ठीक, x आवर्स मान लेते हैं, x आवर्स में स्मॉलर टैप में, क्योंकि स्मॉलर है तो टाइम ज्यादा लगना है उसमें, ठीक है, और कितना ज्यादा है 10 आवर्स, और स्मॉलर जो डायमीटर टैप है उसने x आवर्स लिए, तो लार्जर डायमीटर वाला क्या है, इससे कितना कम लेता है 10 आवर लेस, ठीक है। देन टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल टैंक, दैट विल बी इक्वल टू x प्लस 10 आवर्स, ठीक है भाई। लार्जर वाला क्या है भाई, ज्यादा मींस सॉरी लार्जर वाला 10, लार्जर वाला तो क्या है ज्यादा स्पीड से भरेगा, और कितना 10 लेस है, तो x माइनस 10, ठीक है, x माइनस 10 आवर्स इसमें लगेगा, ठीक है। अब ये देखते हैं, हमें ये बताना है दोनों मिलके कितने टाइम में फिल कर देते हैं, कितने टाइम में, ठीक है। टाइम टेकन बाय बोथ टैप्स टू फिल टैंक, कितना भाई 9 and 3 by 8 hours, that is 8 9 जा 72 plus 3 75 by 8 hours, दोनों मिलके इतने टाइम में कर देते हैं, ठीक है। स्मॉलर डायमीटर टैप टेक्स x hours, larger diameter takes x minus 10 hours, and when they both are on at the same time, they fill the tank in 75 by 8 hours, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई पार्ट फिल्ड बाय पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप in 1 hour, तो x आवर्स में पूरा भर देता है, तो टैंक का 1 घंटे में कितना हिस्सा भरेगा। चलो इसको हम एक थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। अब मान लो जनरली इफ एनी टैप कैन फिल द टैंक इन 2 आवर्स, 2 घंटे में, मान लो सपोज करते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वी लीव दिस हियर। इफ सपोज ए टैप फिल द टैंक इन 2 आवर्स, 2 आवर्स में फिल कर देता है, ठीक है, तो इन 1 आवर हाउ मच पार्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड, 1 घंटे में कितना हिस्सा भरा जाएगा टैंक का 1 by 2 पार्ट क्या है टैंक का भर देगा। सपोज करो कि 3 आवर्स लगते हैं उसको, ठीक है, सपोज कीजिए कि 3 आवर्स में वो टैंक को पूरा भर देता, तो 1 घंटे में कितना हिस्सा भर देगा उसका, कितना पार्ट, हाउ मच पार्ट विल बी फिल्ड इन 1 आवर, तो दैट विल बी 1 by 3 पार्ट, ठीक है। अगर मान लो 75 by 8 आवर्स में अगर भरता है, कोई मान लो टैप है या 2 टैप 3 टैप, इतने टाइम में फिल कर देते हैं टैंक को, तो 1 घंटे में कितना हिस्सा भर जाएगा, पार्ट फिल्ड इन 1 आवर, पार्ट फिल्ड इन 1 आवर विल बी, इसका रेसिप्रोकल 8 by 75, क्योंकि 3 का रेसिप्रोकल 3 by 1 था तो 1 by 3 पार्ट, 2 by 1 था 1 by 2 पार्ट, तो ये 75 by 8 आवर्स लगे हैं, तो 1 घंटे में कितना हिस्सा भर जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 8 by 75 आवर्स। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स कम टू दिस वन, पार्ट फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर। अब कितने टाइम में भर देता है, x आवर्स में फिल कर देता है उसको, तो इन 1 आवर हाउ मच पार्ट विल बी फिल्ड, 1 आवर में 1 by x पार्ट, ठीक है, उस टैंक का 1 by x पार्ट हिस्सा उसमें 1 आवर में भर देगा। नाउ नेक्स्ट, पार्ट फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर, जो लार्जर टैप वो 1 घंटे में कितना भरेगा, लार्जर टैप कितने टाइम में फिल कर देता है टैंक को, x minus 10 आवर, x minus 10 आवर, तो 1 घंटे में वो कितना भरेगा, कितना हिस्सा भर जाएगा, 1 by x minus 10 आवर्स, सॉरी 1 by x minus 10 पार्ट, इतना हिस्सा भर देगा, ठीक है। और दोनों मिलके कितने टाइम में फिल करते हैं, 75 by 8 आवर्स, तो पार्ट फिल्ड बाय बोथ टैप इन 1 आवर, दोनों मिलके
कितने में भर देते हैं 75 बाय 8 आवर्स, और 1 घंटे में कितना हिस्सा फिल कर देंगे इसका रेसिप्रोकल कितना 8 बाय 75 और इतना हिस्सा। ठीक है, स्मॉलर डायमीटर वाले ने 1 घंटे में इतना हिस्सा भरा, लार्जर वाले ने इतना हिस्सा भरा, तो दोनों ने मिला के कितना हिस्सा भरेगा ऐड कर देंगे, दोनों मिलके देयरफॉर दोनों मिलके कितना हिस्सा भर देंगे, दोनों को इकट्ठा चला दें तो कितना हिस्सा भर जाएगा 1 आवर में 1 बाय x प्लस में 1 बाय x माइनस 10, ये हिस्सा भर जाएगा। और ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 8 बाय 75। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और सोल्व करेंगे। इज इट क्लियर? लेट्स सॉल्व इट। एलसीएम कितना आ गया, x into x minus 10, x से डिवाइड करेंगे x minus 10 into 1, x minus 10 प्लस में x minus 10 से डिवाइड करेंगे क्या x into 1, x that is equal to 8 by 75। मल्टीप्लाई कीजिए, x plus x कितना होगा 2x माइनस में 10 डिवाइड बाय x into x, x square minus x into minus 10 minus 10x that is equal to 8 by 75। Is it clear? अब 75 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 75 को इधर और इसको उधर, 75 into this कितना 75 into this 75 into 2x minus 10 और ये उधर जाके 8 into x square minus 10x। ठीक है, 75 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये उधर 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई 75 हो जा 150x minus 75 into 10 750 is equal to 8x square और ये minus 80x, bring these two left hand side minus 8x square और ये प्लस का 150x माइनस का 750 और ये भी इधर आके प्लस का 80x that is equal to 0। ये हमने यहाँ लिख लिया, इसको माइनस 80x को प्लस 80x, तो माइनस 8x स्क्वायर। अब ये 150 प्लस में 80 कितना हो गया भाई 150 प्लस में 80 230x माइनस 750 that is equal to 0। अब 8 230 750 ये डिवाइड होता है किससे 2 से, तो क्या करें इसको प्लस करने के लिए इसको -2 से डिवाइड करो हर टर्म को, वी विल डिवाइड इट बाय -2, तो कितना आ गया 4x स्क्वायर माइनस से यहाँ माइनस हो जाएगा 2 से कितना आ जाएगा 115x और ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस और कितना 375 दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a दैट इज इक्वल टू माइनस बी कितना है माइनस 115 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 115 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 4 इंटू 4 इंटू कितना 375 डिवाइड बाय 2a 2 इंटू 4 सिंप्लीफाई कीजिए भाई माइनस माइनस प्लस 115 प्लस माइनस 115 का स्क्वायर। अब देखिए मैंने एक फार्मूला बताया था पिछले लेक्चर्स में 5 का स्क्वायर कितना है माइनस का तो प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 11 से एक ज्यादा 11 प्लस 1 कितना होगा 12 11 इंटू 12 कितना होगा 132 और माइनस 375 इंटू 4 375 इंटू 2 कितना होता है 750 इंटू 2 750 इंटू 2 1500 इंटू 4 15 4 जा 6000 कितना आ गया 6000 आप देख लीजिएगा डिवाइड बाय 8 दिस इज 115 प्लस माइनस अब देखिए भाई मल्टी माइनस कीजिए इसको कितना 225 तो आ ही जाएगा 225 13 माइनस 6 कितना हो गया 7 डिवाइड बाय 8। अब इसका स्क्वायर
ठीक है 115 प्लस माइनस, अब इसका स्क्वायर 25 का तो 5 और 7 72, 72 क्या होता है 8 9 जा 72, स्मॉलर क्या है 8, तो कितना इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 85। ये पूरा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं हाउ टू फाइंड द square root of this one, divide by 8. Now you will get the two values, one by taking x and taking plus and another taking minus. So x is equal to 115 plus में 85 by 8 and another value is x is equal to 115 minus 85 by 8. Is it clear? Simplify कितना होगा 200, कितना होगा भाई 200 by 8, 200 by 8 क्या होता है 8 2 जा 16, 8 5 कितना होगा दिस इज 25। x की वैल्यू क्या आ गई 25। दूसरी भी चेक करनी है हमें, कितना आ गया 115 माइनस 85 कितना भाई 0 11 माइनस 8 3 30 by 8 2 से 4 2 से 15 15 by 4 कितना आ गया 4 3 जा 12 4 3 जा 12 3 बच गया, तो डेसिमल के बाद कैरी करेंगे डेसिमल, फिर 4 7 जा 28, फिर 4 5 3.75। तो क्या भाई 3.75 आवर्स हो सकती है। अब व्हाट इज x? x is the time taken by the smaller tap to fill the tank. Smaller time taken by the smaller tank to fill the tank कितना x hours, x अगर 25 है तो इसने स्मॉलर ने कितना लिया 25 आवर्स, और लार्जर डायमीटर वाला तो जल्दी भर देगा, तो कितना 25 माइनस 10 कितना 15 आवर्स, ठीक है। लेकिन सपोज कीजिए भाई कि x की वैल्यू हम 3.75 लेते हैं, कितना 3.75 आवर्स, तो टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक 3.75 आवर्स, तो फिर लार्जर वाला कितना लेगा 3.75 माइनस 10, ये तो नेगेटिव आ जाएगी, तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, ये तो एनीवे पहले ही भर देगा वो चलाने से पहले, तो यू विल x is equal to minus 3.75 is not possible। क्या लिखेंगे x is equal to minus 3.7, it is impossible। ठीक है भाई, it is impossible, therefore x is equal to 25। x क्या है टाइम टेकन बाय, लिखेंगे आप टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप कितना है भाई 25 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर दैट टाइम टेकन बाय लार्जर टैप कितना x minus 10, that is x minus 10 is equal to 25 minus 10, that is equal to 15 आवर्स, ठीक है भाई। लार्जर डायमीटर वाले टैप ने कितना टाइम लिया 15 आवर्स, स्मॉलर वाले ने 25 आवर्स। इज इट क्लियर? इसको बहुत एक बार दोबारा फिर हम देख लेते हैं। इसमें है टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप x, और लार्जर वाले ने कितना 10 आवर्स कम लिया था, तो टाइम टेकन बाय लार्जर x minus 10, और दोनों ने मिलके कितने में फिल कर दिया था 9 and 3 by 8, तो 75 by 8 आवर्स। अब हमने देखा भाई हमने क्या निकालना है इसमें, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 आवर, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 आवर बाय द स्मॉलर टैप। अब x आवर्स में फिल करता है तो 1 घंटे में कितना हिस्सा भरा जाएगा 1 by x, और दूसरे ने 1 by x minus 10, और दोनों ने मिलके 8 by 75, तो इन दोनों ने मिलके इतना हिस्सा भर दिया, इनका ऐड करके इसके इक्वल आ गया, फिर आगे इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। इट्स ओके। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर इज 468 meter square। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स का एरिया कितना 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर, उनके भाई एरियाज, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, एंड डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स, उनके पैरामीटर्स का जो डिफरेंस है वो कितना है 24
मीटर। ठीक है ना, इसमें देखिए अब डिफरेंस ऑफ पैरामीटर अलग अलग है, यानी कि उनमें उनकी जो डायमेंशंस है स्फीयर्स की, साइड्स की, वो अलग अलग है। ठीक है, ठीक है भाई। अब इसको मान लो x, इसको क्या मान लो x मीटर, इसको क्या मान लो y मीटर। तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा x स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और ये कितना y स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये एरिया है। अब इनकी पैरामीटर्स निकाल लो। तो पहले एरियाज का सम कितना है 468 मीटर स्क्वायर, और फिर उनके पैरामीटर्स का जो डिफरेंस है वो कितना है 24 मीटर। तो भाई 20 पैरामीटर आपको फार्मूला पता है, तो उनका डिफरेंस निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, दो इक्वेशन आ जाएंगे आपके पास में, उन दोनों में से उसको एक में से वैल्यू लेके दूसरे में पुट कर लेंगे, यू विल गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट्स डिफरेंस, let the side of larger sphere है, उसकी साइड कितनी है x मीटर्स, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में तो साइड मीटर्स पे लेंगे और पैरामीटर मीटर में। ठीक है, देन या लेट साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर कितना है y मीटर्स। अब दोनों के एरियाज लिख लेते हैं। ठीक है, सम ऑफ या एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर, एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर कितना होगा साइड का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर कितना है y का स्क्वायर, और यूनिट है मीटर का स्क्वायर। अब उनके पैरामीटर लिख लेते हैं। पैरामीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर कितना है, पैरामीटर ऑफ लार्जर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर 4 इंटू साइड दैट इज इक्वल टू 4x मीटर। ये एक तरह से लेंथ ही होती है, x प्लस x प्लस x प्लस x कितना हो जाएगा 4x मीटर। पैरामीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4y मीटर। इज इट क्लियर नाउ? अब इसमें देखा सबसे पहला क्या दिया है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू, दोनों के एरिया का सम कितना है 468। पहले का ये है, दूसरे का ये, तो क्या लिखे देयरफॉर x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, x प्लस स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। नेगलेक्ट द यूनिट्स रहने दो, x square plus y square is equal to 468. Let this is equation first. उसके बाद है difference of their parameters is 24. तो larger के पैरामीटर में से smaller का पैरामीटर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो this is therefore 4x minus 4y that is equal to 24. 24 4 से डिवाइड करो इसको, 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया x minus y कट गए दोनों is equal to 4 6 that this is second। और इसमें भी माइनस y को उधर ले जाइए, तो x is equal to माइनस y उधर जाके प्लस y होगा, और ये प्लस का 6 तो है ही, let this is second। अब इसमें से x की वैल्यू को सेकंड से फर्स्ट इक्वेशन में पुट की सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to y plus 6 in equation first। x की जगह पे y plus 6 कितना, x की जगह पे y plus 6 का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 468। सिंपलीफाई कीजिए, y plus 6 का होल स्क्वायर कितना होगा, y स्क्वायर प्लस 2 into y into 6 12y प्लस में 6 का स्क्वायर 36 प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल, इसको भी ले आइए माइनस 468 दैट इज इक्वल टू 0। अब y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना आ गया 2y स्क्वायर फिर कितना प्लस का 12y और कितना ये 36 प्लस का और माइनस 468, 36 इसमें से माइनस कीजिए, माइनस
8 माइनस 6 2 और 6 माइनस 3 और ये 432 आ गया। ठीक है, 468 माइनस का था, प्लस का 36 था, तो माइनस 432 दिस इज इक्वल टू 0। अब 2 12 और 432 यू कैन डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2, तो डिवाइडेड बाय 2 तो कितना होगा y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 2 से 2 2 या 2 1 जा 2 6 जा दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मर्जी है आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कीजिए इसको सॉल्व या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले से। चलो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से देखते हैं, रिवाइज हो जाएगा कहीं इसमें, काफी टाइम से नहीं किया हमने। अब मिडिल टर्म कितनी है 6 प्लस का 6 a into c y स्क्वायर का हो गया 1 into minus 216 minus 216। अब आपको दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको ऐड करें तो 6 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो minus 216। अब मल्टीप्लाई करने से minus 216 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से माइनस का आता है, इट मींस one number is of plus and another is of minus, and when you are adding them it is plus 6, यानी कि बिगर नंबर जो लार्जर नंबर होगा वो क्या होगा प्लस का होगा, यानी कि प्लस और माइनस वाले का डिफरेंस कितना होना है 6 होना है। तो इसको फैक्टराइज करके पेयर बनाइए, 216 को डिवाइड करो 2 से, 2 1 जा 2 8 जा 2 से 54, हम तब तक 2 2 जा 4 और इसका डिफरेंस 6 नहीं होता, तो 2 से फिर 2 से 27, फिर 3 से 9। अब देखिए 3 2 जा कितना हो गया 6, 6 2 जा 12 और 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और 18, 2 9 जा 18, 12 into 18 216 और 12 और 18 का डिफरेंस कितना होता है 6, तो वन नंबर इज 12 एंड अनदर इज 18, तो लार्जर नंबर क्या होगा प्लस का होगा, तो कितना 18 into -12 और 18 minus 12, 18 minus 12 6 और इनका प्रोडक्ट 11। तो स्प्लिट करो मिडिल टर्म को, 6y को क्या लिखेंगे 18y minus 12y, तो y स्क्वायर प्लस में 18y minus 12y minus 216 this is equal to 0। now take the common from these two, इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन है, टेक y as कॉमन, तो y plus 18 और इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया -12 तो कितना आ गया ये y माइनस कॉमन आ गया तो प्लस, और 216 में से आपने 12 कॉमन ले लिया, 12 into 18 216 था, तो 12 कॉमन ले लिया तो कितना आ गया 18, this is equal to 0। now what do you take in out of these two terms, y plus 18 आपने कॉमन ले लिया, y plus 18 और क्या बच गया y minus 12, this is equal to 0, either this is 0 और this is 0, y plus में 18 is equal to 0 और y minus 12 is equal to 0, कितना होगा y is equal to minus 18 and y is equal to minus 18, y is equal to 12, और what is y, side of a sphere, side cannot be negative, side cannot be negative में साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो y क्या होगा 12, और क्या है आपको दोनों साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू, तो क्या आ गया साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर, साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 12 मीटर। ओके, उसके बाद है साइड ऑफ द लार्जर, साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर कितना है x किसके इक्वल है भाई, x इज इक्वल टू y प्लस 6, x इज इक्वल टू y प्लस 6, y कितना है 12, तो कितना y प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18 मीटर। तो साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स आर 12 and 18 मीटर। इज इट क्लियर? दिस वाज ऑल योर एक्सरसाइज 4.3।